اللہ تعالیٰ نے جو ناپ تول کے بارے میں سورت قرآن پاک میں جو اللہ فرماتا ہے ویل للمطففین، تخفیف کرنا ہوتا ہے کمی کر دینا، کسی چیز میں کمی کر دینا۔ مطففین کمی کرنے والے، جو یہ گناہ کرتے ہیں، جو یہ حرام کرتے ہیں، وہ مطففین ہیں۔ سورت کا نام ہے تخفیف، کمی کرنا۔ تو اللہ مطففین کے لیے کیا فرماتا ہے؟ جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، کیا سزا ہے ان کے لیے؟ ویل، ویل کیا ہے؟ جہنم کی وادی ہے جہاں آگ بھڑک رہی ہے۔ ہر برائی کے ساتھ ویل کا لفظ آتا ہے۔ جو بھی گناہ کرتا ہے، جو برائی کرتا ہے، اس کے شروع میں اللہ کہتا ہے ویل لل، ان کے لیے ویل ہے، ان کے لیے جہنم کی وادی ہے، جہنم کی آگ ہے، وہ خاص آگ بھڑکائی ہوئی جو ہے وہ ویل ہے، جہاں ہر گناہ، ہر برائی کے لیے ویل المطففین۔ تو ویل ہے ان کے لیے الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، وہ لوگ جب کوئی چیز کسی سے خریدتے ہیں، معاف کر لیں یا تول کر لیں، تو پوری پوری لیتے ہیں، اور جب بیچتے ہیں تو اس میں ڈنڈی مارتے ہیں۔ ڈنڈی کیسے مارتے ہیں؟ تولنے میں۔ یہ قرآن کی آیت ہے، بلکہ پوری سورت ہے یہ مطففین کی، کم تولنے والوں کے لیے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی جو قوم تھی، ان کی عادت تھی کم تولنا، کم ناپنا۔ ناپتے کپڑے کو ہیں ایسے کھینچ کے، تو جب ہم کپڑے کو کھینچ کے ناپیں گے تو تھوڑا سا بڑھ جاتا ہے نا کھینچنے سے، ایک گرہ دو گرہ کا فرق پڑ جاتا ہوگا۔ تو اسی طرح جب وہ ناپ کے کئی گاز ہوگا تو اس میں سے کافی فرق پڑ جائے گا۔ تو ناپنے میں تو وہ یہ کمی کرتے تھے کہ کپڑے کو کھینچ کے ناپتے تھے، اور تولنے میں کیا کرتے تھے؟ تو پہلے زمانے میں اس طرح کے ترازو نہیں ہوتے تھے، پیمانے تولنے کے نہیں ہوتے تھے، وہ دوسرے ترازو ہوتے تھے، اوپر ڈنڈی لگی ہوتی تھی، اس کے اوپر درمیان میں ڈوری باندھی ہوتی تھی ہاتھ میں پکڑنے کے لیے، اور وہ لکڑی جو ہوتی تھی اس کے دونوں سروں پہ پلڑے اس کے لٹک رہے ہوتے تھے۔ ایک میں وہ باٹ رکھتے تھے، وزن رکھتے تھے، دوسرے میں وہ چیز ڈالتے تھے جو تولنی ہوتی تھی۔ پھر اس ڈنڈی کو پکڑ کے ایسے کرتے تو وہ پلڑے دونوں برابر ہو جاتے، تو وہ تول کے دے دیتے، جتنا تولنا ہوتا اتنے وہ تول دیتے۔ اور ڈنڈی کیسے مارتے؟ سیدھے ہاتھ سے تولتے تھے نا، سیدھے ہاتھ والی سائیڈ کا جو پلڑا ہوتا تھا اس میں وہ چیز ڈالتے تھے جو تولنی ہوتی تھی، اور بائیں ہاتھ والا جو پلڑا ہوتا تھا اس میں وہ باٹ ڈالتے تھے، وزن۔ تو پھر جب تولتے تو یہ چھوٹی انگلی جو ہے نا ڈنڈی کے اوپر ہوتی تھی، ایسے پکڑی ہوتی تھی، تو چھوٹی انگلی کو وہ دبا کے ڈنڈی کو ادھر سے نیچا کر دیتے، وہ پلڑا جھک جاتا جس میں وہ چیز ڈالی ہوتی تھی جو تولنی ہوتی تھی۔ چھوٹی انگلی سے ڈنڈی کو ایسے کر کے جھکا دیتے، اسے کہتے ہیں ڈنڈی مارنا۔ وہ ڈنڈی مارتے تھے، جب تول کے دیتے تو کم دیتے تھے، جب خریدتے تو پورا خریدتے تھے۔ اللہ کہتا الذین ویل للمطففین، کمی کرنے والوں کے لیے ویل ہے جہنم کی۔ الذین، جو لوگ اذا اکتالوا، جب لیتے ہیں معاف کر، علی الناس، لوگوں سے، یستوفون،
तो वो पूरा पूरा तोल के लेते हैं। लेकिन वाइज़ा कालूहुम, जब उन्हें बेचते हैं, देते हैं, अब वज़न हो तो वज़न करते हैं, हम युखसिरून, कम कम करके देते हैं। आजकल वो डंडी वाला रिवाज तो है नहीं, वो तराजू तो है नहीं जिसमें पहले लोग तोलते थे। जब ये कुरान आए नाज़िल हुई तब उस तराजू का रिवाज था। अब क्या रिवाज है? अब एक तरफ वो पाट रखा होता है जिसमें वो चीज़ डालते हैं, सब्ज़ी है, फल है, जो चीज़ भी तोलनी है, और दूसरी तरफ वो बाट रखे हुए हैं वज़न। तो अब कैसे डंडी मारते हैं, कैसे कमी करते हैं, कैसे कम तोलते हैं? गाहक तो सामने खड़ा देख रहा होता है, उसे नहीं पता चलता कि जो वो पाट होता है, बर्तन होता है जिसमें वो सब्ज़ी या अनाज जो कुछ तोड़ रहे हैं वो डालते हैं, उसके नीचे मकनातीस लगा देते हैं, वो पाट को नीचे को खींच लेता है। ये हम अपनी आंखों देखा बता रहे हैं। पाट के नीचे छोटा सा मकनातीस लगाते हैं, मकनातीस उस पाट को नीचे खींच लेता है, वो झुक जाता है, तो जो वज़न वाला वो बाट वाला जो होता है वो ऊंचा हो जाता है। तो कहते हैं देखें जी, मैं ज़्यादा ही तोल के दे रहा हूँ। वो नहीं किसी को पता चलता कि नीचे इसने क्या किया हुआ है। कैसी बेईमानी करते हैं, हराम खाने के लिए, ईमान बेचने के लिए, चंद सिक्कों के लिए। कोशिश करें देखने की। एक तो वो ये बेईमानी करते हैं, ऐसे कम तोलते हैं, तोलने में ही बेईमानी नहीं करते, चीज़ का अच्छा बुरा होने में भी करते हैं। ख़राब चीज़, अच्छी चीज़ के पैसे लेने, ऊपर ऊपर सजा के एप्पल रखे हुए हैं, आम रखे हुए हैं, खूबसूरत जो है ना माल वो ऊपर रखा हुआ है, नीचे अपने आगे जो रखे हुए हैं वो गले सड़े हुए रखे हुए हैं। पैसे अच्छी चीज़ के लेने दिखा के, तो माल उसको गला हुआ सड़ा हुआ देना। ये भी शायद आपने नोट ना किया हो। तो वो कैसे करते हैं? गला सड़ा माल निकाल के, जैसे मिसाल ले लें कि एप्पल हैं जो सड़े हुए गले हुए हैं, उनके किलो किलो के, आधा आधा किलो के तोल के, काले रंग के शापर या नीले रंग के जिसमें से वो नज़र ना आए, तोल के उन्हें गिरा लगा के अपने आगे रख लेते हैं एक साइड पे करके। फिर गाहक से कहते हैं जी चुन लें, अपनी पसंद के अच्छे अच्छे चुन के डाल लें तोलने के लिए। वो अच्छे अच्छे चुन के उसमें डालता है, खुश होता है कि मैंने आज बहुत अच्छा फल लिया है। जब वो एक किलो दे दें जी, 1 किलो उसने तोल दिया उसके सामने गाहक के, और सामने उसमें शापर में डाला और फिर गिरा लगाई और दूसरा उठा के दे दिया। जो पहले से बना के रखे हुए वो भी वैसे ही हैं, वो भी वैसे ही है, और गाहक को पता ही नहीं चलता, आंखों में धूल झोंक देते हैं। एक जैसे शापर हैं, एक जैसा ही वज़न है, और साथ ही वो रखा है, साथ ही वो रखते हैं। वो उठाने की बजाय दूसरा उठा के उसे, जब वो घर जाके देखता तो उसमें एक भी सेब खाने के काबिल नहीं है, सारे सड़े हुए। मेरे साथ खुद ऐसे हुआ। इंसान देख के हैरान कि मैंने तो चुन चुन के डाले थे, इसमें तो एक भी दाना नहीं है। एक ये तरीका करते हैं, एक और तरीका करते हैं, वो भी मैं आपको बता दूं। आजकल जो आम बाज़ार में चल रहा है वो यही तीसरे वाला तरीका बता रही हूँ। एक वो मकनातीस वाला हो गया जो कम तोलते हैं, एक अच्छी चीज़ के पैसे लेके सड़ी हुई चीज़ देते हैं, और तीसरा तरीका ये है कि जब वो गाहक डाल रहा होता ना, शापर पकड़ा देंगे कि अपनी पसंद का डाल रहे, गाहक वो डाल रहा होता ना, तो दुकानदार जो है वो सड़े सड़े निकाल के हाथ ऐसे करके कि नज़र भी ना आए, साथ साथ वो भी डालता जाता है।
गाहक भी अच्छे अच्छे डाल रहा है तो वो भी डाल देता है सड़े हुए उठा के, उसे पता नहीं चलता। जब वो तोलता है तो वजन ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि गाहक ने तो अच्छे अच्छे डाले थे, उसने सड़े हुए डाल दिए, दुगना वजन हो गया। फिर जब वज़न ज़्यादा होता है तो वो फिर अंदर से जो गाहक ने डाले होते हैं अच्छे अच्छे, वो चुन चुन के निकाले जाता है, वज़न ज़्यादा हो गया, फिर वज़न पूरा कर देता है, फिर उसके डाले हुए जो सड़े हुए वो रह जाते हैं। क्या किया? अच्छी चीज़ के पैसे लिए, सड़ा हुआ फल दे दिया धोखे से। ये हराम की कमाई है या हलाल की? हलाल कमाया उसने, धोखा दिया, फरेब दिया, चंद सिक्कों के लिए अपना ईमान बेच दिया। हराम की कमाई घर लेके जाएगा, बच्चे भी हराम खाएंगे, वो भी हराम के काम करेंगे। जिसके पेट में हराम की कमाई होगी उसकी नमाज रोज़ा कुछ कबूल नहीं होता, उसकी कोई इबादत कबूल नहीं होती। धोखा दिया। अल्लाहु अकबर। तो अल्लाह कहता है, ये सूरह मुतफ़्फ़िफ़ीन की मैं पहली 1-2 आयतें पढ़ रही हूँ, उसमें तो सिर्फ जिक्र ही किया ना कि अल्लाह ने सूरह मुतफ़्फ़िफ़ीन नाज़िल फरमाई है। ये सूरह मुतफ़्फ़िफ़ीन मैं आपको सुना रही हूँ, 30वें सिपारे में है। वैलुल लिल मुतफ़्फ़िफ़ीन अल्लज़ीना इज़ा तालू अलन नासी यस्तौफून, कि जब वो लोगों से ख़रीदते हैं तो पूरी तोल के लेते हैं। वाइज़ा क़ालूहुम अब वज़नुहुम युख़सिरून, और जब उन्हें देते हैं बेचते हैं तो उसमें कमी करके, डंडी मार के बेचते हैं या वैसे ही करके उसे कम तोल के देते हैं। तो अल्लाह कहता है, अला यज़ुन्नु उलाइका अन्नहुम मबऊसून, इंसान क्या तुझे ख्याल नहीं कि तेरा रब तुझे दोबारा जिंदा करेगा, और तेरे साथ जो हमारे मुहाफिज फरिश्ते हैं वो सब कुछ देख रहे हैं और लिख रहे हैं गुनाह। उन्हें तो पता है ना कि ये गुनाह कर रहा है, कम तोल रहा है, अच्छे माल की बजाय सड़ा हुआ माल दे रहा है, तो वो लिख रहे हैं। और क़यामत के दिन जब तू अपने रब के सामने पेश होगा, जब तेरा अमाल नामा तेरे हाथ में आएगा, उसमें ये सब कुछ लिखा हुआ होगा कि तू दुनिया में क्या करके आया है। क्या तुझे उसका ख्याल नहीं? अला यज़न्नु उलाइका अन्नहुम मबूसून, के उसे फिर उठाया जाएगा लियौमिन अज़ीम, उस बड़े दिन के दिन, क़यामत के दिन। यौम यक़ूमुन नासु लिरब्बिल आलमीन, जिस दिन सब गुनाहगार अपने रब के सामने सर झुकाए खड़े होंगे और उन्हें अमालनामे दे दिए जाएंगे कि देख लो तुम दुनिया में क्या करके आए। तो 7वें नंबर पर हमारा आज का जो है कम तोलना और कम नापना, बड़ा गुनाह और हराम। चीज़ों के लेन देन में नाप तोल में कमी या ज़्यादती को कुरान ने शदीद हराम कहा है, और इसके ख़िलाफ़ करने वालों के लिए सूरह मुतफ़्फ़िफ़ीन नाज़िल फरमाई है। मुफ़स्सिरुल कुरान हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास ने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों को जो तजारत में नाप तोल का काम करते हैं ख़िताब करके इरशाद फरमाया कि नाप और तोल पर ये वो काम है जिनमें बेइंसाफ़ी करने की वजह से तुमसे पहले कई उम्मतें अज़ाब इलाही के ज़रिए तबाह हो चुकी, उन पर अज़ाब नाज़िल हुआ। मैंने बताया कि हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम जो थी वो ये गुनाह करती थी, कम तोलते थे, कम नापते थे। तो हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने उन्हें मना किया
रोका कि तुम ऐसे ना करो। वो कहते हैं हमें बचत नहीं होती, हमारा गुजारा नहीं होता। मैंने भी एक दिन एक रेडी वाले से कहा, उसे फ्रूट लिया, उसने यही हरकत की। तो मैंने कहा कि तुम पूरा तोला करो, पूरा नापा करो, अल्लाह ने मना किया है। कहते जी सानू बचत नहीं होंगी, हमें बचता नहीं कुछ भी, हम इस तरह से ज़्यादा कमा लेते हैं। चंद सिक्के कमाने के लिए इतना बड़ा हराम करते हैं, सारी कमाई हराम हो जाए। एक पैसा भी उसमें हराम का मिल जाए तो वो सारी हराम हो जाती है। अल्लाह अकबर अल्लाह। तो हज़रत शुएब के काम पे जब वो नहीं माने, वो ही करते रहे, तो अल्लाह ताला ने उन पर अज़ाब नाज़िल किया। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा कि अगर तुम ऐसा करोगे तो जैसे पहली कौमों पर अज़ाब नाज़िल हुआ, अगर दुनिया में नहीं तो आखिरत में तुम्हें अज़ाब दिया जाएगा। अल्लाह फरमाता है कि नाप तोल की कमी, जिसको कुरान में तफ़ीफ कहा गया है, सिर्फ डंडी मारने और कम नापने के साथ मखसूस नहीं, और भी कामों में हम डंडी मारते हैं। हत्ता कि एक दिन मस्जिद नबवी में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नमाज पढ़ने गए, देखा कि आदमी नमाज पढ़ रहा है। वो जल्दी जल्दी रकू में गया, समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना लकल, खड़े होते ही साथ ही वो सजदे में चला गया। सजदे में गया, एक सजदा किया, अल्लाहु अकबर, हाथ उठाए नहीं, सीधा होके बैठा नहीं, ऐसे हाथ घसीटे और साथ ही दूसरा सजदा। क्या यह सही तरीका है नमाज का? हजरत उमर ने उसे बुलाया कि इधर आओ, तुम्हारी नमाज नहीं हुई, चलो दोबारा नमाज पढ़ो। उसने दोबारा नमाज पढ़ी, उसी तरह आदत जो हो गई थी ऐसे पढ़ने की। मैंने अक्सर बहनों को देखा है, रकू से खड़ी होंगी, सीधी होकर खड़ी भी नहीं होंगी, साथ ही सजदे में चली जाएंगी। एक सजदा किया, हाथ उठा के यहाँ भी नहीं रखने, ऐसे हाथ घसीटे, साथ ही दूसरा अल्लाहु अकबर। तो ये नमाज की चोरी, नमाज में डंडी मारना। दूसरी बार उसने नमाज पढ़ी, फिर हजरत उमर ने कहा कि तुम्हारी नमाज नहीं हुई, चल नमाज दोबारा पढ़। फिर जब तीसरी बार उसने कहा कि या हजरत उमर से कि या उमर, मुझे सही तरीका बता दीजिए, मैं तो ऐसे ही पढ़ता हूँ। हजरत उमर ने कहा देखो मैं तुम्हें पढ़ के दिखाता हूँ जैसे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते थे। रकू से सीधे खड़े हो जाए, समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना लकल हम्द, चंद सेकंड खड़े रहें सीधे होके, बिल्कुल सीधे। फिर रकू सजदे में जाएं, सजदा करके हाथ उठा के यहाँ ऊपर रखें, फिर अल्लाहु अकबर के सीधे होके बैठ जाएं। बैठना है चंद सेकंड, ये नहीं कि सर उठाए और साथ ही दूसरा सजदा। ये नमाज की चोरी होती है, ये नमाज में डंडी मारना होता है। हम दूसरे कामों में भी डंडी मारते हैं। अल्लाह कहता है कि नाप तोल की कमी, जिसको कुरान में तफ़ीफ कहा गया है, सिर्फ डंडी मारने और काम नापने में ही मखसूस नहीं, बल्कि किसी के ज़िम्मे दूसरे का हक है और किसी पर हमने दिहाड़ी पे लगाया कि तुम्हें इतने पैसे मिलेंगे दिहाड़ी के, वो क्या करेगा? अगर मजदूर ही है, कोई पत्थर तोड़ रहा है, तो वो क्या करेगा? आहिस्ता आहिस्ता लगा हुआ है, वक्त पास करना, क्योंकि दिन पूरा करना है उसने।
ऐसा ऐसा, फिर बैठा सिगरेट पी रहा है, फिर बैठा पानी पीने चला गया, फिर बैठा खाना खाने चला गया। कितना वक्त उसने पूरे दिन में कितने घंटे ज़ाया किया। अगर उसकी ड्यूटी 8 घंटे की है तो मुश्किल से वो 6 घंटे काम करेगा। तो 2 घंटे कहाँ गए? 2 घंटे की चोरी की, वो हराम वक्त गुजारा। मुलाजिम है, एक तो लेट पहुंचेंगे ड्यूटी पे, फिर वक्त से पहले छुट्टी करके आ जाएंगे, शॉर्ट लीव लिख देंगे, वहां भी वो चोरी करते हैं। अब उस्ताद है, बच्चों को पढ़ाने जाता है, एक बच्चे को खड़ा कर देता है, चल तू इनका सबक सुन, खुद बैठे आराम से, फोन कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। जो उसका फर्ज था बच्चों को पढ़ाना, समझाना, लिखवाना, जिसकी वो तनख्वाह लेता है, वो अपने तनख्वाह को हराम कर देता है। बच्चों की तरफ तवज्जो ही नहीं उसकी। बच्चे करें ना करें, ये भी चोरी। अपनी रोजी को हराम कर लेते हैं। हर काम में डंडी मारते हैं। जब किसी का हक हो हमारे जिम्मे, अच्छा अगर वही काम हम उसे ठेके पे दे दें तो वो 10 घंटे का काम 8 घंटे में करके रख देंगे, जी हमारा काम हो गया, हम जा रहे हैं, 2 घंटे पहले छुट्टी करके आपका काम पूरा हो गया, वो वक्त से पहले कर देंगे। तो ये लोगों ने अपनी रूटीन बना ली है। धोखा देना, फरेब करना, झूठ बोलना, हक मारना, ये भी तो हक मारना ही है। मुलाजिम है चाहे कोई, वो भी यही करते हैं। लिकुल्ली शैइन वफाउन व तत्फीफ, हर काम में, हर चीज में हम कमी कर देते हैं, वक्त बचाते हैं, आराम करते हैं, दूसरे के काम का चाहे नुकसान हो। तो ये क्या है? ये भी तफरीक है। मुतफ़्फ़िफ़ीन हैं जो कमी करते हैं, और जिनका ठिकाना अल्लाह ने कहा है वैलुल लिकुल्ली मुतफ़्फ़िफ़ीन, हर किसी को जो काम में चोरी करता है, ताकि हम नमाज में भी चोरी करते हैं, नमाज भी सही तरीके से पूरे वक्त पे नहीं पढ़ते। अल्लाह कुरान में कहता है वाक़ीमुस्सलाता, अपनी नमाज को कायम करो, सही तरीके से पढ़ो, जल्दी जल्दी मुर्गे की तरह ठूंगे ना मारो। ये भी हदीस पाक में है, जल्दी जल्दी सजदे करना। अल्लाहु अकबर। लिकुल्ली शैइन वफाउन व तस्फीफुन, यानी उसका हक पूरा देना और कमी ना करना हर चीज़ में होता है, सिर्फ नाप तोल में ही नहीं, बाकी भी हर चीज़ में होता है, और हर चीज़ में अपना हक पूरा कर। अगर किसी को चीज़, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक मौका पर वज़न करने वाले को हुक्म दिया कि जिन व अर्जी, तोलो लेकिन झुकता हुआ, जो किसी को दे रहे हो तोल के, झुकता हुआ दो, थोड़ा रत्ती तोला माशा ज्यादा चला जाए, कमी ना हो। अगर तुम भी लो, देते हो तो ज्यादा दो, अगर लो तो उसमें कोई कमी है, जरा उसमें कमी रह गई, तो उस पे नाराज ना हो, उस पे राजी हो जाओ, अल्लाह उसका अजर देगा। अगर गलती से उससे कमी रह गई, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत यही थी कि जिस किसी का कोई हक आपके ज़िम्मे होता
تو اس کے ادا کرنے کے وقت اسے زیادہ دیتے؟ کہیں اللہ مجھے کم تولنے کم ناپنے والوں میں نہ لکھ لے۔ تھوڑا سا جھکتا ہوا اسے دیتے، کوئی چیز دیتے تو تھوڑی سی زیادہ دے دیتے، اسے زیادہ دینے کو پسند فرماتے تھے۔ ایک حدیث میں بروایت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحمت کرتا ہے جو بیچنے کے وقت بھی نرم ہو کر حق سے زیادہ دے دے، تھوڑا سا جھکتا ہوا دے دے، اور خریدنے کے وقت بھی نرم ہو کہ حق سے زیادہ نہ لے۔ اگر تھوڑا کام بھی ہے تو اس پر راضی ہو جائے، جھگڑا نہ کرے، تو اللہ اس پہ اپنی رحمت۔ جہاں اللہ نے کہا کہ اسے تھوڑا سا زیادہ دے دو، جھکتا، اگر خرید رہے ہو لا علمی میں اس سے کچھ کمی رہ جاتی ہے تو اس پہ ناراض نہ ہو۔ اس کے بارے میں اللہ نے کہا لا نکلف اللہ نفسا الا وسعها، ہم تمہاری وسعت سے کم نہیں دیتے، اگر تھوڑی سی کمی بھی رہ جائے تو اس پہ راضی ہو جاؤ، اللہ تمہیں اس سے زیادہ دے گا۔ لا نکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ اس کی وسعت سے کم نہیں دیتا، زیادہ نہیں دیتا۔ ہم کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ کسی چیز کا حکم نہیں دیتے، صرف انصاف، پورا تو لو پورا نہ ہو، لیتے وقت پورا لیتے ہیں اور دیتے وقت کم کرتے۔ اللہ اکبر۔ تفسیر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جملہ ہے، اضافہ کرنے سے اشارہ اس طرف ہے کہ ادا کرتے وقت احتیاط سے کہ کچھ زیادہ دے دو تاکہ کمی کا شبہ نہ رہے کہ ذرا بھی کمی ہو گئی تو میں کم تولنے والوں میں ہو جاؤں گا۔ اس شبہ کو ختم کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے تھوڑا سا جھکتا ہوا دے۔ اگر تمہیں تھوڑا سا کم ملے تو تم اس پہ راضی ہو جاؤ، اللہ تمہیں اس سے زیادہ دے گا۔ تو قرآن میں یہ ارشاد فرما دیا کہ اے ایمان والو، پورا تولو اور پورا نہ پو۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک دو واقعات ہم نے خود اپنے ساتھ جو ہوئے وہ بتا دیے کہ لوگ کس کس طرح سے حلال رزق کو حرام کر لیتے ہیں۔ یہ چھوٹی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے، اللہ نے اسے حرام کیا ہے، اور انہی 3 آیتوں میں اس کا بھی ذکر ہے۔ اس کا پوائنٹ نمبر 7 ہے۔ 8 اور 9 رہ گئے، اس کے بعد آخری 10 پوائنٹ ہیں ان 3 آیتوں کے۔ یہ وہ 3 آیتیں ہیں جو پورے قرآن پہ محیط ہیں۔ ان میں ہر وہ گناہ، باقی چھوٹے چھوٹے گناہ ان کے اندر ہیں، وہ تو ہوتے ہی رہتے ہیں، یہ بڑے گناہ ہیں جسے اللہ نے وصیت کہا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مہر لگا ہوا وصیت نامہ پڑھنا چاہتا ہے تو وہ یہ 3 آیتیں پڑھ لیں، اس میں جو جو حرام دیے ہیں ان سے بچ۔ گناہ کبیرہ جن کی کوئی بخشش نہیں ہے، جو گناہ کبیرہ ہیں
बाकी सारी बुराइयां इन्हीं के अंदर से निकलती हैं। एक दिन मैंने देखा कि एक बाबा बेचारा बूढ़ा ज़ईफ गरीब आदमी रेहड़ी पे उसने आमों की पेटी रखी हुई है, रोता हुआ जा रहा। आम कुछ उसने रेहड़ी पे ढेरी किए हुए हैं। कहता मैं मंडी से लेके आया हूँ, ऊपर ऊपर इतने खूबसूरत आम कहता रखे हुए थे, महंगे दामों में ख़रीद के लाया। अच्छा फल है, महंगा बेचूंगा, मुझे भी नफ़ा होगा और जल्दी बिक जाएगा। एक तय ऊपर अच्छे आमों की लगाई हुई है, खूबसूरत, कीमत भी ज़्यादा। उसने कहा बहुत अच्छे आमों की पेटी है। जब घर ला के उसे रेहड़ी पे पलटा तो नीचे सारे गले सड़िया, इतने गले हुए कि कोई भी ना जिसे खरीदे। वो कहता किसी से उधार पैसे लेके मैं आम लेके आया था कि शाम तक कुछ मेरी रोजी बन जाएगी। मेरे वो भी पैसे कर्ज भी चढ़े और मुझे रोजी भी ना मिली। आखिर वो पेटियां जिसने भरी होंगी उन्हें नहीं पता कि हम इसकी कीमत क्या लगा रहे हैं और इसमें भर क्या रहे हैं। दिल खून के आंसू रोता है उन लोगों पे जो अपनी रोजी को हराम करते हैं, दूसरों को रुलाते हैं। क्या उन्हें नहीं पता कि हम गलत कर रहे हैं? हम माल क्या दे रहे हैं और कीमत इसकी पेटी की कितनी ले रहे हैं? जो ऊपर अच्छे अच्छे खूबसूरत सजा के रखे हुए, कीमत उनकी ले रहे हैं, उसमें है सारा सड़ा हुआ माल। तो इससे बड़ा गुनाह और क्या हो सकता है? जो दूसरों का पेट काट लेता है, उन्हें उनकी रोजी जो है उसे। अल्लाह अकबर। ऐ अल्लाह, तू ईमान वालों को समझने की तौफीक अता फरमा, तेरे कुरान पे अमल करें अल्लाह। मगर नहीं, सुन लेते हैं लेकिन अमल नहीं करते। जो अमल नहीं करता वो कुफर है। अल्लाह कहता है इन्नल्लज़ीना कफ़रू बिआयातिना, जो हमारी आयतों पर अमल नहीं करते, कुफर करते हैं, इनकार। हम ज़बान से इनकार नहीं करते, अल्लाह को भी मानते हैं, अल्लाह के नबी को भी मानते हैं, कुरान को भी मानते हैं, कुरान पढ़ते भी हैं, कुरान सुनते भी हैं, लेकिन क्या हम अमल करते हैं कुरान पे? अल्लाह ने अब ये जो अहकाम सुनाए हैं, ये जो मेरे आज 7 अहकाम 2-3 दिन में पूरे 10 हो जाएंगे। मैं रोज़ाना एक अल्लाह का वो हुक्म सुनाती हूँ। कौन कौन है जिसने इस पे अमल करना शुरू कर दिया? हम अमली तौर पे इनकार करते हैं कि उस पर अमल ही नहीं करते। ज़बान से इनकार नहीं करते, ज़बान से हम मानते हैं कि हाँ ठीक है, अल्लाह ने जो कहा है ठीक है, लेकिन जब अमल नहीं करते तो वो इनकार है। जो इनकार करता है वो कुफर है। अल्लाह हमें इस कुफर से बचाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहु अकबर। कल हमारा 8वां पॉइंट होगा। ईद से पहले इंशाल्लाह ये 10 पॉइंट ख़त्म हो गए। सल्लल्लाहु। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह। या रब्बुल आलमीन, या रब्बुल आलमीन, या रब्बुल आलमीन। जो तेरा कुरान पढ़ा, जिसका जिक्र किया, मेरे अल्लाह, सुनने वालों को उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए मेरे अल्लाह। हम सबको कुरान पे अमल करने की तौफीक अता फरमा, तौहीद के रास्ते पे चला, अल्लाह का हुक्म पूरा करने की तौफीक अता फरमा। हमें गुनाहों से बचा, शैतान से बचा, गुमराही से बचा, शिर्क से बचा। या अल्लाह, हमें सिरात मुस्तकीम पे चला, और यही सिरात मुस्तकीम है, कुरान ही तो तौहीद का सीधा रास्ता है।
وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین لا الہ الا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.